So yesterday you have completed exodeviation, pseudoexotropia, and what is exophoria. So before discussing the further slide, so I think I would like to give again briefly introduction about the exodeviation. So what is exodeviation? An exodeviation is the manifest. An exodeviation is a manifest or latent divergence strabismus that frequently exodeviation is varying among the different ethnicity. And so exodeviation could be true exotropia and pseudoexotropia. So first of all, you should know about what is pseudoexotropia, how to differentiate that from pseudoexotropia and from the true exotropia. The term pseudoexotropia refers to an appearance of exodeviation when the pat's eye is properly aligned. So looks like is in your corneal reflex test, it looks like it's the exotropia, but while you perform like a cover test or alternate cover test, you could not able to find out that part of the deviation part because the eye is properly alignment. Why it look like a pseudo exotropia? That because of wider interpupillar distance or positive angle kappa. So yesterday we have discussed what is the angle kappa. So angle kappa is uh, the angle is between like or visual angle between the visual axis and the pupillar axis. Should not be more than 5 degree. If the five more than the 5 degree, it will be more than the 5 degree, the positive angle kappa or large angle kappa. And in that particular cases, we will find out the pseudo exotropia, exotropia. And if you one second, exodeviation, and in the negative angle kappa, the angle between both the visual axis and pupillar axis will less than the 5 degree, and eye is moved towards the nasal side. So that in that particular cases, we'll find out like pseudo esotropia. Okay, so that is the pseudo. The true esotropia is always manifest and always apparent, or it's manifest. Why it's manifest? Because in HBCT, Herzberg corneal reflex test, we will find out the exotropia in even also in your cover test. In pseudo exotropia, you could not able to find out the part in like your cover test. You could not able to find out the cover test. You'll find out the just an if you do an only corneal effect test, you'll find out the eye is getting deviated from the outside. So in this pseudo exotropia. Then coming to the exophoria, the exophoria and exodeviation controls the fusion by the under the normal viewing condition, and exophoria detected while the binocular vision is interrupted. So I studied yesterday, like fusion is always in binocular. If you close the one eye for the prolonged occlusion, then your eye, if you going to the eye is moving toward the outside, moving to outside, that means the exophoria is there because once the phoria gets manifest once the fusion gets breakdown. Okay, fusion gets breakdown. So phoria, so in case of phoria, the patient doesn't have any symptoms. So most of the time asymptomatic. In weak cases, especially symptomatic and especially presented worse. But on that particular cases, when the patient is prolonged work or prolonged computer work or prolonged visual task, near visual task, that particular case, patient will come to present it to us and ask a bit asthenotic symptoms, not an eye is going to moving the outside. Okay, patient never complain of the eye is going to moving outside. Patient is complain of I like I'm having asthenic symptoms, headache. I'm not be able to focusing my near vision task. That because for exophoria, near exophoria. That most of the time happening with the convergence insufficiency type convergence insufficiency. That convergence insufficiency type of exotropia that is called exophoria. You'll find out the near exophoria. Okay. So in that, so yesterday we have discussed that one. So today we'll discuss about tropia part. So as I said, tropia is always manifest, and phoria is always latent. So you'll find how you'll find out the tropia and phoria. In tropia, you will find out the manifest either it could be HRCT and cover test, but in phoria, if phoria only after doing the alternate cover test or prolonged occlusion, you'll find out the phoria, but no, rather than this method, you could not able to find out the like phoria part. He means the phoria part. Okay, so today we'll discuss the tropia. So tropia is always manifest. So today we'll discuss about intermittent exotropia. So what is intermittent? सर Hello. सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत फास्ट फास्ट हो रहा है. सबको हो रहा है कि तुमको हो रहा है? ट्रोपिया का मतलब ये है कि जो मैनिफेस्ट होता है ऑलवेज ट्रोपिया इज मैनिफेस्ट दैट आप फाइंड आउट करोगे एचआरसीटी में पता चलेगा, हॉस्पिटल कॉर्नियल रिफ्लेक्स पे पता चलेगा,
HCG में, और किस में पता चलेगा आपको, कवर टेस्ट में भी पता चल जाएगा। लेकिन तो फोरिया में क्या होता है, until and unless you will do alternate cover test, you could not able to find out the foria part, because foria is always क्या depend on fusion। if the good फ्यूजन है उसके पास, बहुत बाइनोकुलर कंडीशन में फ्यूजन बहुत स्ट्रांग होता है, तो फ्यूजन से वो आपको कवर अप कर ले, कंपेंसेट कर लेगा, ठीक है, कंपेंसेट कर लेगा। लेकिन जब तक उसका फ्यूजन ब्रेक नहीं होगा, आपको फ्यूजन क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, फोरिया नहीं मिलेगा। सो कल हमने इस चीज को डिस्कस कर लिए थे, फोरिया वाला पार्ट। तो आज ट्रोपिया को ही करेंगे। सो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया, फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया, व्हाट इज द क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ विल बी ट्रीटेड एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कंटेम्पलेट लाइक इन इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया। सो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया जो होता है, इंटरमिटेंट का अगर हिंदी का वर्ड निकलो, रुक रुक के, मतलब बार का अभी है अभी नहीं है, जैसे बहुत ही इट्स नॉट काइंड ऑफ साइकिल। आपको उसका फ्यूजन के ऊपर डिपेंड करता है। इफ द पेशेंट हैविंग गुड फ्यूजन, तो पेशेंट हैव बहुत वेरी मिनिमल टाइम ऑफ द एक्सोट्रोपिया विल बी मैनी एक्सोट्रोपिया will be seen. If the patient who doesn't have any like good fusion, the patient will most of the time will see like exotropia part. So intermittent का मतलब रुक रुक के आपको दिखेगा, अभी दिखेगा अभी नहीं दिखेगा, आपको ऐसे लगेगा। So intermittent exotropia is the most common type of exodeviation in clinical clinician encounter। आपको ना हमारी ओपीडी में अगर आप जाओगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप स्क्वींट का अगर 10 पेशेंट दिखोगे, 10 से 2-3 पेशेंट आपको इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया वाला मिल जाएंगे, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी और कुछ है, लेकिन 2-3 पेशेंट आपको इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया वाले में मिल जाएंगे। सो व्हाट आर द क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये क्यों होता है, ठीक है, व्हाट आर द कॉज, ये क्यों होता है या कब होता है। सो जैसे लिखा है, द ऑनसेट ऑफ इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया यूजुअली अकर्स बिफोर एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर एज से पहले ना ये जो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया होता है यूजुअली मतलब मैनिफेस्ट होने लगता है। सो इसका फर्स्ट क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारा, होता है ना, इंटरमिटेंट स्ट्रैबिस्मस दैट मोस्ट कॉमन इन फर्स्ट 1 to 2 months ऑफ लाइफ। एंड वो, और ये क्या होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। क्यों इधर मैं बोला, जैसे अब जो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया पार्ट होता है ना, तो फ्यूजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्यूजन उसका बहुत ही अच्छा है, तो ये पार्ट ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, उसको जरूरत नहीं, उसको ऑपरेट करना जरूरत नहीं है, कुछ करना जरूरत नहीं है, ग्लास की जरूरत नहीं है। अगर उसका फ्यूजन अच्छा नहीं है, तो बार बार ये मैनिफेस्ट होगा। तो मैनिफेस्ट होने से कारण ये कंस्टेंट को शिफ्ट हो जाएगा, कंस्टेंट मतलब पूरा उसका फ्यूजन भी खराब हो जाएगा, तो कांस्टेंट को शिफ्ट हो जाएगा। तो इंटरमिटेंट यूजुअली स्पॉन्टेनियसली रिजल्व कर जाता है बच्चे में। सो ये कब हो, मतलब ये वो इंटरमिटेंट जो कांस्टेंट इन्फेंटाइल एक्सोट्रोपिया, कब ये कांस्टेंट हो जाता है ना, कब होता है, जैसे लिखा है वहां पे देखो, द कांस्टेंट इन्फेंटाइल एक्सोट्रोपिया डिस्कस लेटर करेंगे, बिकॉज ठीक है ये तो करेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट को कब शुरू है, बिकॉज द प्रॉपर अलाइनमेंट विद इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया रिक्वायर्स दैट मोस्ट कॉमन दैट कंपेंसेटरी फ्यूजनल फैक्टर्स भी एक्टिव, ठीक है, जो प्रॉपर अलाइनमेंट होता है। तो फ्यूजन अगर होगा तो हमारे क्या करेगा, अलाइनमेंट ठीक रहेगा, आई में डिविएशन नहीं दिखेगा। तो कंपेंसेटरी फ्यूजनल मैकेनिज्म मतलब फ्यूजन को पूरा करने के लिए जो उसका मैकेनिज्म लगता है, ठीक है, फ्यूजन को पूरा करने के लिए जो उसका पैथोलॉजी मैकेनिज्म लगना चाहिए, पैथोलॉजी होना चाहिए, पैथोफिजियोलॉजी होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। पर बिकॉज वो क्या करते हैं, कंस्टेंट को शिफ्ट हो जाता है, और कंस्टेंट इंटरमीडिएट कंस्टेंट मतलब इंटरमीडिएट कांस्टेंट पार्ट को शिफ्ट हो जाता है, वो ऑलवेज आपको मैनिफेस्ट दिखेगा। लेकिन इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपी इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू अस बाय ऑर्थोपोरी। कभी कभी पेशेंट बोलेंगे सर वो कभी कभी दूर को दिखता है, तो वो लगता है कि हाँ उसका आई डेविएशन है। जैसे मैंने टेकन एग्जांपल, हमारी क्लासेस में अलीसा है, हेलो अलीसा है अभी, हेलो, देन नीचे आ जाओ, ये हो गया 3 हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 2। एक्सो डेविएशन इज यूजुअली लार्जर व्हेन द पेशेंट इज व्यूइंग द डिस्टेंस टारगेट। जैसे बोला, तो इंटरमिटेंट जो एक्सोट्रोपिया होता है, जब पेशेंट का उसको ज्यादा देखेगा, जब पेशेंट दूर के लिए देखेगा, प्रोलॉन्ग नियर टास्क करेगा, जब नियर पूरा डिस्टेंस को कंटिन्यूअसली बहुत देर तक देखते रहेगा, उसमें क्या होगा, उसका फ्यूजन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, फ्यूजन ब्रेक होने के कारण से क्या क्या होगा, एक्सोट्रोपिया बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट होने लगता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या लिखा है, दैट दे मे बी डिफिकल्ट टू एलिसिटेट द नियर दर। क्यों लिखा है, क्योंकि नियर के लिए जब भी वो देखेगा ना, अगर उसको फ्यूजन अच्छा रहेगा तो वो कंपेंसेट कर लेता है, ठीक है। तो दूर के लिए हमेशा दिखता है, और नियर के लिए क्यों नहीं दिखता, क्योंकि नियर के लिए फ्यूजन चाहिए, नियर के लिए कन्वर्जेंस चाहिए, नियर के लिए एकोमोडेशन चाहिए, ये सारे ना कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है फ्यूजन को, मतलब क्या होता है, बढ़ावा देते हैं, तो ये फ्यूजन को हेल्प करते हैं फ्यूजन होने के लिए। तो ये सारे एक साथ जब होते हैं तो फ्यूजन बहुत अच्छा हो जाता है, तो हमें वहाँ पे एक्सो डेविएशन बहुत ही कम मिलता है रादर देन द डिस्टेंस, ठीक है।
तो ये काफी सारे टाइप्स का होता है, जिससे लिखा है इंटरमिटेंट देखो यहाँ पे इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया कैन बी एसोसिएटेड स्मॉल हेटेरोपोरिया ए एंड बी पैटर्न। अभी हम पढ़ेंगे ए एंड बी पैटर्न, ओवर एक्शन अंडर एक्शन, अभी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया का पैटर्न होता है, जैसे ए पैटर्न होता है, वी पैटर्न होता है, एक्स पैटर्न है, लैम्बडा पैटर्न है। तो चार पांच पैटर्न है जो अभी आपकी जो कोर्सेज सिलेबस में है, ए पैटर्न और बी पैटर्न के ऊपर दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। ए व्हाट इज ए पैटर्न, व्हाई इट्स कॉल्ड ए पैटर्न एंड व्हाई इट्स कॉल्ड बी पैटर्न, हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी हम पढ़ेंगे जैसे इवैल्यूएशन, तो कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इवैल्यूएशन करने से पहले वहाँ पे कुछ टर्म लिखा है, द क्लिनिशियन इवैल्यूएशन बीइंग एन विद एन हिस्ट्री इंक्लूडिंग द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ स्ट्रैबिस्मस, whether the exotropia became more frequent or the circumstances under which deviation is manifest। तो ये क्यों लिखा है, बिकॉज एक तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात है एक्सोट्रोपिया उनको ये बोले मोर फ्रीक्वेंट। जब आप पेरेंट्स को क्वेश्चन पूछते हो, उनके पेशेंट पूछते हो, आपको उनको ये पूछना है आपको कब ये ज्यादा मैनिफेस्ट होता है, कब नहीं होता है। तो पेशेंट बोलेगा सर मुझे जब दूर के लिए दिखते हैं, जब प्रोलॉन्ग्ड वर्क करता हूँ तभी मेरा आंख बाहर की तरफ में नोटिस का बाहर की तरफ जाता है, जब मैं नियर काम करता हूँ, जब भी कुछ अटेंशन वाला काम करता हूँ, नियर के लिए फोकस करता हूँ, तब वो नहीं होता है, ठीक है। ये हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो पेशेंट को वेदर द एक्सोट्रोपिया इज बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट बार बार होता है या कब कब होता है, कि जब आप दूर के लिए देखते हो, कुछ काम करते हो, तभी वो होता है। ये क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन का टाइम पे। तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द असेसमेंट इज मेड फॉर द पेशेंट कंट्रोल एक्सोडेविएशन विच कैरेक्टराइज। तो आप जब असेसमेंट करोगे तो पेशेंट के लिए ना, पेशेंट को जो असेसमेंट करोगे एक्सोडेविएशन में, जो इंटरमिटेंट एक्सोडेविएशन को जो एग्जामिनेशन करोगे, उसमें 3 चीज आपको ध्यान देना है उसका के कंट्रोल के ऊपर। तो कंट्रोल क्या होता है, जो फ्यूजनल कंट्रोल होता है। तो एक होता है गुड कंट्रोल, एक होता है फेयर कंट्रोल, एक होता है पुअर कंट्रोल। जिसका गुड कंट्रोल है वो क्या करेगा, विद इन ए सेकेंड आपको क्या करेगा, वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के हिसाब से, कंपेंसेटरी फ्यूजन के हिसाब से वो क्या करेगा, एक्सोडेविएशन को वो क्या करेगा, लैटेंट कर लेगा और कंपेंसेट कर लेगा, बिल्कुल ऑर्थो हो जाएगा। फेयर कंट्रोल ऑफन मतलब वो ऑन एंड ऑफ, कभी होता है कभी नहीं होता है। फेयर में इज ऑलवेज मैनिफेस्ट, कभी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका फ्यूजन जो कंपेंसेटरी फ्यूजन मैकेनिज्म है ब्रेन से, वो उसका खराब है, तो नहीं कर पाते। तो 3 कंट्रोल है, आपको देखना पड़ेगा, गुड कंट्रोल है, फेयर कंट्रोल है और पुअर कंट्रोल है। तो हाउ डू टेस्ट, तो आप टेस्ट कैसे करोगे, जब क्या करोगे, जब आप डिस्टेंस के लिए इसको टारगेट दोगे पढ़ने के लिए, एक बार वो पेशेंट टारगेट ये करेगा, पढ़ेगा, रीड आउट करेगा, फिर क्या करोगे, इमीडिएटली रीड आउट, कंटिन्यूसली उनको बोलना कि प्रोलॉन्ग रीड आउट करने के लिए। तो रीड आउट करने के बाद पेशेंट को बोलोगे इमीडिएटली नियर चार्ज देखने के लिए, वो क्या करेगा, उसका आई का ऑर्थो हो जाएगा, बिल्कुल डेविएशन को चला जाएगा, वो गुड कंट्रोल है। फेयर कंट्रोल क्या है, वो डिस्टेंस के लिए देखेगा, जैसे ही नियर के लिए देखेगा, वो नियर के लिए पढ़ते पढ़ते कभी कभी हो जा रहा है, वो फिर से बार बार वो फ्यूजन लगा के वो केयर में ऑन एंड ऑफ, कभी होता है कभी नहीं होता है, ऑन एंड ऑफ होगा, वो फेयर कंट्रोल में आ जाएगा। पुअर कंट्रोल में क्या होगा ना, एक्सोडेविएशन इज क्या होगा, पुअर है, बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि उसका कंपेंसेटरी जो फ्यूजन मैकेनिज्म है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन है, तो इसको पुअर कंट्रोल बोलते हैं। तो ये 3 चीज को हमें क्या करना है, ध्यान देना है क्या, कौन सा ध्यान देना है, कि हमारा गुड कंट्रोल है, फेयर कंट्रोल है या पुअर कंट्रोल है। व्हाइल यू एग्जामिनिंग द एनी केस ऑफ एक्सोट्रोपिया, इट्स काइंड ऑफ लाइक इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया, always you should mention your like workup sheet, always mention your statistics part, like it's a good control, fair control or poor control, always you should mention, because that helps your treatment part। क्योंकि आप अगर गुड कंट्रोल है उसको पैचिंग थेरेपी से ठीक हो सकता है, फेयर कंट्रोल है ऑन एंड ऑफ पैचिंग थेरेपी, ग्लासेस वगैरह अगर कुछ आता है उसमें ठीक है। फेयर कंट्रोल पे, पुअर कंट्रोल में आपको सर्जरी करना पड़ेगा, सर्जरी को अनटिल अनलेस बिना सर्जरी से वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको सर्जरी करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आपको क्या करें, ध्यान देना है। समझ में आया यहाँ तक, ये क्लियर है आपको, हेलो हेलो, नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोग ये करेंगे तो क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन ये करेंगे कि इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया का जो क्लासिफिकेशन होता है, तो बेसिकली 4 टाइप होता है। तो उसको पहले आता है सूडो डाइवर्जेंस एक्सिस टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया, देन बेसिक एक्सोट्रोपिया, then true divergence axis type of exotropia, then convergence weakness type of exotropia, ठीक है। जो एक्सोट्रोपिया तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ आते हैं। सूडो डाइवर्जेंस एक्सोट्रोपिया मतलब ये है, देखो यहाँ पे लिखा है, इट्स अ कॉमन, it's the most common form of intermittent exotropia
patient initially have larger exodeviation at distance than the near, but this difference become minimal after monocular occlusion or +3 diopter lenses. तो pseudo divergent exotropia क्या होगा, अगर उसको डाइवर्जेंस एक्सोट्रोपिया है, उसको ना अगर एक्सोट्रोपिया है, मान लो एक बात याद रखना हमेशा, कीप इन माइंड कि अगर एक्सोट्रोपिया है उसको डिस्टेंस और नियर ऑलवेज जो डेविएशन का जो पैटर्न रहता है, अगर डिस्टेंस के लिए 30 प्रिज्म डायप्टर एक्सोट्रोपिया है, नियर के लिए भी ऑलमोस्ट उतना रहेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा लेकिन उतना ऑलमोस्ट उतना रहेगा। लेकिन सूडो डाइवर्जेंस एक्सोट्रोपिया में क्या होता है, डिस्टेंस के लिए ज्यादा होता है, नियर के लिए बिल्कुल ऑर्थो होगा, नहीं तो मिनिमल, बहुत ही ज्यादा मिनिमल है, 5 डिग्री, डिस्टेंस के लिए 30 रहता है, यहाँ पे 5 डिग्री 10 डिग्री रहेगा। तो दैट इज सूडो डाइवर्जेंस सूडो कर रहा है, मतलब वो एक्सोट्रोपिया ना रिप्रेजेंट कर रहा है सूडो की तरह, ये नहीं है की तरह प्रेजेंट कर रहा है। क्यों? बिकॉज पर सूडो डाइवर्जेंस है। तो उसको हम कैसे रूल आउट करेंगे, उसको कहो ऑक्लूजन कर दो। जैसे मैं बोला इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया ऑलवेज क्या करेगा, अगर ऑक्लूजन प्रोलॉन्ग ऑक्लूजन कर दोगे वो क्या मैनिफेस्ट होने लगेगा, तो क्या करेगा उसको ऑक्लूजन कर दे। तो ऑक्लूजन होने के कारण से क्या हुआ, वो क्या फिर से वो आंख क्या नियर के लिए भी उतना डेविएशन हो जाएगा जितना डिस्टेंस के लिए हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो +3 एडिशन दे दो, उसका फ्यूजन को ब्रेक कर दो, ठीक है, +3 एडिशन देकर उसका फ्यूजन ब्रेक कर दो। ब्रेक होने के कारण से क्या होगा, अगर नियर चीज देखेगा नहीं तो अकोमोडेशन होगा नहीं, कन्वर्जेंस होगा नहीं, तो फ्यूजन ब्रेक होगा। तो फ्यूजन जब ब्रेक हो जाएगा तो उसको डाइवर एक्सोट्रोपिया हमारे क्या लगेगा, मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो इसलिए लिखा है सूडो डाइवर्जेंस एक्सोट्रोपिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया, usually in a patient initial stage with a larger deviation for the distance, not for the near. Even if for the near, the patient will represent as a very minimal deviation. Like if you take an example for the distance part, if you measure the distance deviation, you will find out the 30 प्रिज्म diopter. In near के लिए आपको होगा, it will become like 5 to 10 or 5 degree exotropia. That should not be in basic type of exotropia. That should not be in for the basic exotropia. In basic kind of basic exotropia में क्या होता है, the distance and near is always same. It's most of them always same. ठीक है। तो सूडो में क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है, सूडो मतलब आपको वो सूडो डाइवर्जेंस के मतलब आपको लगेगा ये मतलब डाइवर्जेंस एक्सेस नहीं है, सूडो डाइवर्जेंस एक्सेस है। तो आपको कैसे रूल आउट करना है, तो आपको क्या करना है, प्रोलॉन्ग्ड ऑक्लूजन कर दो, नहीं तो +3 डायप्टर लेंस नियर के लिए दे दो। तो देने से क्या होगा, उसको फ्यूजन ब्रेक होगा। ब्रेक होने के कारण से क्या होता है, वो बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा बेसिक एक्सोट्रोपिया। तो आप लेकिन आप डायग्नोसिस करोगे सूडो डाइवर्जेंस एक्सेस टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया, फिर आप उसको ट्रीट करोगे, अगर ऑपरेट करोगे तो ग्लासेस दोगे, दैट डिपेंड अपॉन योर क्लिनिकल फाइंडिंग। ठीक है, ये क्लियर हुआ? हेलो, कि इंटरमिटेंट जो एक्सोट्रोपिया का जो क्लासिफिकेशन, इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया क्लासिफाइड इन द बेसिक like in 4 types of classification है। So first one is pseudo divergence exotropia, excess type of exotropia, basic exotropia, true divergence excess exotropia, then convergence weakness type of exotropia. So first we'll discuss about the pseudo divergence excess type of exotropia. So ध्यान से सुनो, जो divergence type of exotropia क्या होता है, divergence type of exotropia, divergence should be more, like ये अगर वो ट्रू डाइवर्जेंस होगा तो डिस्टेंस के लिए ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, नियर के लिए कम रहेगा अगर डाइवर्जेंस फेनोमेनन ज्यादा है। क्यों? नियर के लिए उसका अकोमोडेशन, कन्वर्जेंस, फ्यूजनल मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है, फ्यूजनल कंपेंसेटरी फ्यूजनल मैकेनिज्म काम करता है डाइवर्जेंस टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया में, जिसमें ट्रू डाइवर्जेंस है काम करेगा। तो इसलिए नियर के लिए थोड़ा बहुत कम रहेगा, तो कम रहता है, और डिस्टेंस के लिए ज्यादा रहता है, वो ट्रू हो गया। लेकिन सूडो डाइवर्जेंस एक्सोट्रोपिया क्या करेगा, आपको रिप्रेजेंट करेगा लाइक ट्रू डाइवर्जेंस की तरह। क्यों? क्योंकि उसी वो जो डेविएशन है आपको लगेगा डिस्टेंस के लिए ज्यादा है, आपको लगेगा, यू विल फाइंड आउट मोस्ट ऑफ द टाइम यू फाइंड आउट लार्जर डेविएशन एट द डिस्टेंस देन द नियर। आपको डिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा डेविएशन मिलेगा, नियर के लिए कम मिलेगा। तो हाउ टू रूल आउट कि सूडो डाइवर्जेंस एक्सेस टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया और ट्रू डाइवर्जेंस टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया। सो हाउ यू फाइंड आउट, you just nothing could be done, like just an occlusion, do an prolonged occlusion for 30 to 45 minutes, or if the patient is not like not cooperative for the occlusion therapy, just given a additional lenses, just given additional lenses like +3 additional lenses, then for 30 to 45 minutes, then we'll do the coverage. If you'll find out a distance and near is equal now, so this is the form of basic type of exotropia, but this patient is presented with pseudo divergence ना, तुम्हारा जो डायग्नोसिस रहेगा, आपको डायग्नोसिस सूडो डाइवर्जेंस टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया। समझ में आया?
जिससे सूडो मायोपिया होता है। पेशेंट मायोपिक नहीं होता है, लेकिन पेशेंट हमें प्रेजेंट करता है मायोपिया भी। क्यों? बिकॉज फॉर उसका क्या होता है, उसका अकोमोडेशन की फेनोमेनन के सेम चीज क्या होता है सूडो डाइवर्जेंस एक्सोट्रोपिया में। वो डाइवर्जेंस एक्सोट्रोपिया क्या होता है, एक्सोट्रोपिया क्या होता है, यूजुअली डिस्टेंस के लिए ज्यादा रहता है, नियर के लिए कम रहता है। लेकिन हाउ कुड यू फाइंड आउट कि ये सूडो है ट्रू है? सो जस्ट डू वन प्रोलॉन्ग्ड ऑक्लूजन फॉर 30 to 45 minutes at least, then you do the cover test. If you find out the distance deviation and near deviation is almost equal to each other, then that is the basic type of exotropia and your diagnosis should be pseudo divergence। क्योंकि बेसिक नहीं था, अपनी उसको बेसिक करके ऑक्लूजन करके तो आपको पहले डायग्नोसिस दे रहा है सूडो डाइवर्जेंस टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया। सेम चीज का उल्टा है ट्रू डाइवर्जेंस। ट्रू डाइवर्जेंस क्या है? अगर ये ऑक्लूजन करने के बाद भी आपको प्री ऑक्लूजन जितना था फाइंडिंग था, विदाउट पोस्ट ऑक्लूजन उतना ही फाइंडिंग है, दैट मींस ट्रू डाइवर्जेंस है। समझ में? एंड बेसिक एक्सोट्रोपिया पता चल गया। बेसिक एक्सोट्रोपिया में क्या होगा, आपको डिस्टेंस और नियर ऑलवेज सेम रहेगा। तो दैट मींस बेसिक। वो इंटरमिटेंट एक्सो बेसिक टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया चला गया। अनदर टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया आ गया कन्वर्जेंस वीकनेस टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया, जहां पे जैसे हमारा कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो गया। तो हम जब मैकेनिज्म होता है, फ्यूजनल मैकेनिज्म होता है, वहां पे एकोमोडेशन फ्यूजन सब कुछ लगता है, कन्वर्जेंस लगता है। तो मान लो किसी का कन्वर्जेंस फिनोमिनन ना बिल्कुल सब मान लो बहुत ही कम है, मसल्स का फैटिग है, मसल्स वीकनेस है, वो कन्वर्जेंस ठीक से नहीं हो, मोटर मैकेनिज्म बिल्कुल तो वीक है, पुअर है, वो नहीं हो पा रहा है। तो नहीं होने के कारण से क्या होता है, मतलब हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं, स्टिमुलेट जितना होना चाहिए, रेस्पॉन्स जितना करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा है, तो कन्वर्जेंस वीकनेस होता है। कन्वर्जेंस वीकनेस होने के कारण से क्या होगा, आपको नियर के लिए धीरे धीरे होगा आई डेविएशन होने लगेगा, वहां पे डिस्टेंस के लिए कम रहेगा, नियर के लिए वहां पे ज्यादा रहेगा। जैसे कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया, जो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी जो एक्सोट्रोपिया होता है, डिस्टेंस के लिए बिल्कुल प्लानो रहता है, कुछ नहीं रहता डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस में इतना कन्वर्जेंस लगता नहीं है, क्योंकि नियर के लिए लगता है। जब वो नियर के लिए फोकस करता है, वो क्या करेगा, आई तो कन्वर्जेंस नहीं करता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, आई उसका डेविएशन होने लगता है। दैट इज कन्वर्जेंस वीकनेस टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया।